concepts of coordinate geometry. Coordinate geometry, first of all, you should know that this is an algebraic tool for studying geometry. Geometry को study करने के लिए this one is an algebraic tool. This can be your 1 mark question. Fill up की form में आया हुआ है ये. Coordinate geometry is a dash tool, is an oblique and dash tool for studying geometry. So this is an algebraic tool. सबसे पहला जो इसमें हमारा कंसेप्ट आता है that is the distance between the two points. Coordinates आपको पता है, उस पर मैं स्ट्रेस नहीं दे रही, जो ग्राफ्स में हम बनाते हैं. So distance between two points. कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकते हैं. Suppose one point I am having as A, that is x1 y1, and the other one is B, x2 y2. So the distance between these 2 points AB will be given by root x2 minus x1 whole square, or you can also write down x1 minus x2 whole square. The thing you are to take care of is, अगर यहाँ पे आपने x2 पहले लिखा है तो here also you will write down f2 y2. x2 y2 अगर पहले लिखा है तो दोनों जगह x2 y2 2 वाला जो आपका है सेकंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे. अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है x1 माइनस x2 तो दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पे y1 जो है वो पहले लेना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपने लेके चलने हैं. ये नहीं करना कि इधर आप x2 माइनस x1 कर रहे हो और इधर y1 माइनस y2 कर रहे हो. वैसे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, आंसर में भी फर्क पड़ेगा जहां पे नेगेटिव साइंस इंक्लूडेड होंगे आपके. So this is your distance formula. ज्यादातर आपके जितने भी questions हैं that are based on this distance formula only. Then the next we are having is the section formula. Section formula में उससे पहले collinearity of 3 points हम करते हैं. Collinear means they are lying on a single line. ठीक है, जब हमें 3 पॉइंट्स कोई गिवन है, सपोज वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स एज ए बी सी एंड वी आर टू चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. एक हमारे पास पहले मेथड होता था, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल टू 0 शो कर देते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 है तो इट मीन्स दैट पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ लाइन. बट क्योंकि अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट कट चुका है तो वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट. तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स जब भी आएगा तो आपने क्या करना है, ये 3 डिस्टेंसेस निकाल लेंगे, ए बी बी सी एंड सी ए. किन्हीं दो का आपका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड, डिपेंडिंग ऑन के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है. सपोज दिस इज योर ए बी एंड सी जो है इनके बीच में आ रहा है, देन ए सी प्लस सी बी विल बी इक्वल टू ए बी. ठीक है, अगर I am having this point here, you will be having AC plus CB equal to AB. Suppose I am having AC and B is here, then you will be having AB plus BC, यानी कि sum of these two will be equal to the third. Similarly, अगर आपका point A बीच में आ रहा है BC के, कहीं पे भी ये point हो सकता है, then you will be having BA plus AC is equal to BC. It means ये तीनों distances आपने निकाल लिए. If sum of any two is equal to the third one, तो ये 3 cases में से अगर एक भी कोई case है, then you will say that the points are collinear, they are lying on a straight line. अगर किन्हीं दो का sum third के equal नहीं आ रहा, then आपका तीनों conditions आप check कर लेना, जहाँ पे आपको equal मिल रहा है तब तो वो collinear हैं. अगर तीनों conditions में कहीं पे भी वो equal नहीं मिल रहे, then you will say that the points are non-collinear or they are not collinear. So this is for collinearity of 3 points. After that we are having special triangles, special polygons you can say. Polygon में triangle and quadrilaterals. Triangle में if we are given the coordinates of A, B and C and we are to find the type of triangle. Type of triangle हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? First one, you are having this as scalene triangle. Earlier you used to pronounce it as scalene triangle, but now the pronunciation is scalene. If you check it on the internet, this is scalene triangle.
स्केलीन ट्राइंगल में आपका क्या होता है, ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों की तीनों साइड्स की जो आपकी लेंथ्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और लेंथ्स लेके चलनी है। तीनों लेंथ्स की जो वैल्यूज हैं, तीनों के जो डिस्टेंसेस होंगे दैट विल बी डिफरेंट, देन इट विल बी अ स्केलिंग ट्रायंगल। हाँ जी, हमेशा 2 पॉइंट्स पे लगता है। 2 पॉइंट्स में जो भी उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक को हम x1 y1 मान लेते हैं, द अदर वन वी सपोज एज x2 y2 एंड देन वी यूज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, देन द अदर वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, also it is pronounced as isosceles triangle. Isosceles में क्या होता है, you are having any two sides equal, either AB will be equal to BC or AB will be equal to AC or AC will be equal to BC. Any of the two sides will be equal. Again, distance formula say you will find out the lengths, and any of the two lengths if they are equal, then this will be an isosceles triangle. Then third one is equilateral triangle. Equilateral, you know, all the sides are equal. So you will show AB equal to BC is equal to CA. So these are the types of triangle. आपको coordinates given होंगे A के, B के, C के. आपसे क्या पूछा जाएगा? Check that या show that the given coordinates are the coordinates of an isosceles triangle. तो आपको क्या शो करना है? तीनों साइड्स आप निकाल लोगे, किन्हीं दो साइड्स की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल। अगर नहीं आ रही है देन यू विल से, अगर चेक दैट की फॉर्म में क्वेश्चन है देन यू विल से सिंस नो टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ सो दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल के लिए दिस कंडीशन यू विल यूज, एंड फॉर द स्केलीन ट्रायंगल नो टू साइड्स शुड बी इक्वल। देन वी आर हैविंग द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में if we are to check whether the given coordinates, you will be quadrilateral hai to 4 vertices are there, so you will be given 4 coordinates. Let the coordinates given to you are A, B, C and D. A B C D हमें check करना है। फर्स्ट टाइप इसमें बनती है that it is a parallelogram. If it is a parallelogram, what you are to show, opposite sides are equal and the diagonals are unequal. If it is a parallelogram, then the diagonals are unequal and the opposite sides are equal. One more property parallelogram is having that its diagonals bisect each other. यानी कि diagonals का जो mid point होता है वो दोनों diagonals के लिए same होता है. तो diagonals bisect each other. Second, we are having rectangle. Rectangle, you know, that is a type of parallelogram. So again the same thing, opposite sides are equal. And what is the difference between these two? Parallelogram में you are having the diagonals unequal, but in the rectangle diagonals are equal. एक parallelogram के जब diagonals equal हो जाते हैं then it becomes a rectangle. So opposite sides are equal and the diagonals are equal. ये आपकी प्रॉपर्टीज आप शो करोगे जब आपको शो करना है या चेक करना है दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम चेक करना है तो अपोजिट साइड्स इक्वल शो कर दोगे और डायगोनल्स अनइक्वल शो कर दोगे। डिस्टेंस फार्मूला से आप उनकी लेंथ्स कैलकुलेट करेंगे। इफ यू आर टू शो दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेक्टेंगल देन यू विल शो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। Diagonals equal show कर दोगे AC equal to BD. Then third we are having a square. All the sides are equal and diagonals also equal. All the sides as well as diagonals are equal. या इसको अलग अलग लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड्स क्योंकि आपस में इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो डायगोनल्स आर इक्वल। तो दिस कंडीशन इज फॉर द स्क्वायर एंड इफ यू आर हैविंग अ रोम्बस देन साइड्स इक्वल होंगी बट द डायगोनल्स विल बी अनइक्वल। ऑल द साइड्स आर इक्वल
but diagonals are unequal. So depending on these properties, we can find out what type of quadrilateral we are given. After that, we are having the section formula. सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा है वो इंटरनल डिवीजन पे बेस्ड है. इन केस अगर हमें एक्सटर्नल डिवीजन दी जाती है तो वी कन्वर्ट दैट इनटू द इंटरनल डिवीजन एंड देन वी सिंप्लीफाई. इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू यूज टू डू, एक्सटर्नल डिवीजन की जो भी रेशियो गिवन होती है, जो सेकंड वाली रेशियो है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन. यानी कि हम उसको एक तरह से कह सकते हैं कि हमने उसको फ्लिप कर दिया. सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला. If you are given 2 points A and B, where the coordinates of A are x1, y1 and the coordinates of B are x2, y2, and P is a point which divides it internally in the ratio m/n. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रेशियो को x कोऑर्डिनेट के साथ भी लेके चलना है और y कोऑर्डिनेट के भी साथ लेके चलना है. हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, then the coordinates of P, x coordinate and y coordinate, that will be given by, ये आपने क्रॉस में लेके चलना है. x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियोज को आप x कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे. जब आपको y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, एट दैट टाइम यू विल मल्टीप्लाई द रेशियोज विद द y कोऑर्डिनेट. पहले हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो mx2 प्लस nx1 क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना है, ये क्रॉस आपका बनेगा. ठीक है. So this is mx2 plus nx1 divided by the sum of ratios. जब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपके y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो यू विल बी हैविंग my2, हाँ जी, m plus n. हाँ, यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो. रेशियो आप पे डिपेंड करता है, ये जो है आपके ये डिफरेंट होने चाहिए जो भी आप इनके लिए वेरिएबल यूज कर रहे हो. सो दिस इज m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n. ये है इंटरनल डिवीजन. इन केस इफ वी आर हैविंग कि डिवाइडेड एक्सटर्नली, सो व्हाट यू आर टू डू इन दैट केस, यू विल टेक द रेशियो एज m रेशियो माइनस n and the corresponding coordinates will change as mx2 minus nx1 upon m minus n, and y coordinate will become my2 minus ny1 upon m minus n. So these will be the coordinates of point P if the ratio given is externally, and these are the coordinates if the ratio is given, if the point divides it internally. Then we are having the midpoint formula, that is a corollary of this section formula. आपका रेशियो उस केस में क्या गिवन होगा, दैट विल बी 1:1 बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट. सो इफ अगेन A we are having as x1 y1 and B we are having as x2 y2, then section formula जब आप यूज करोगे, this 1 into x2 and this 1 into x1, 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो get the same number. So your x coordinate will be 1 into x1, that is x1, plus 1 into x2, that is x2, divided by sum of these ratio 1 plus 1, यानी कि x1 plus x2 by 2, and the y coordinate will be given by y1 plus y2 by 2. तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं if we are to find the midpoint of some given line segment. So what we will do, simply add the x coordinates, divide by 2, add the y coordinates, divide by 2, you will get the coordinates of the x and y coordinates of the point. तो यहाँ पे जो आपके ये x, y हैं, this is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ठीक है. After that we are having, if we are to find the ratio in which a point divides a given line segment. जब भी हमें रेशियो निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है, इन दैट केस आपके ए और बी के जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, जिस पॉइंट की मुझे रेशियो निकालनी है कि वो ए बी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी. तो रेशियो कैलकुलेशन के केस में वी विल ऑलवेज टेक इट एज k/1. ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं. इजी क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे रेशियो m रेशियो n एज्यूम कर लेती हूँ,
सॉल्व इससे भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन टफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो जब भी फाइंड द रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके, यू आर टू टेक द रेशियो एज k रेशियो 1 या 1 रेशियो k ऑल्सो यू कैन टेक। वेरिएबल एक लेके चलना है आपको, ठीक है। बाकी आगे वही सेक्शन फॉर्मूला से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड होता है आपका ट्राइंगल में जहां पे आपके मीडियंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। अगर मुझे सपोज गिवन है x1 y1, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b आई एम गिवन एज x2 y2 एंड c आई एम गिवन एज x3 y3, देन द सेंट्रॉइड के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, centroid is the point where the medians are intersecting. So that will be x coordinate will be given by x1 plus x2 plus x3 by 3 and y coordinate will be given by y1 plus y2 by plus y3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. These are the coordinates of the centroid. Centroid आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर उस पॉइंट के नीचे हम एक पिन भी रख दें तो जो भी ऑब्जेक्ट है दैट विल गेट बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम का उसका वो पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक है दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यू विल बी गिवन द 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी ट्राइंगुलर इन शेप। आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स ऐसा पॉइंट जो, ऐसे पॉइंट्स इनफैक्ट यू विल से जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो गिवन लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो लेट द p पॉइंट्स बी p एंड q, ए बी ये 3 इक्वल पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो गई। अब अगर मुझे बात करनी है p के कोऑर्डिनेट्स की, तो जो p है आपका ये पॉइंट है। p की अगर हम बात करें तो 1 पार्ट इज ऑन दिस साइड एंड द 2 पार्ट्स आर ऑन दिस साइड। So it means P is dividing this in the ratio 1:2. अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट Q की, तो ये आपका पॉइंट Q है। Q के इधर यू आर हैविंग 1 पॉइंट एंड 1 पार्ट एंड ऑन दिस साइड यू आर हैविंग 2 पार्ट। तो Q की अगर हम बात करें, Q is dividing this line segment in the ratio 2:1. तो जब भी ट्राइसेक्शन का आपका क्वेश्चन आता है कि दिस ट्राइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, तो आपको ये दोनों पार्ट्स लेके चलने हैं, क्योंकि उसमें वो P की बात भी कर रहा हो सकता है और Q की बात भी कर रहा हो सकता है, अनटिल और अनलेस कि वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता कि वो दैट इज क्लोजर टू A और दैट इज क्लोजर टू B। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि पॉइंट A ट्राइसेक्ट पॉइंट P ट्राइसेक्ट AB एंड पॉइंट P इज क्लोजर टू A, देन आप 1:2 लेके चलोगे, क्योंकि दूसरे पार्ट की बात नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में अगर सेम वे में मेंशन होता है कि दिस इज ट्राइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट AB एंड क्लोजर टू B, तो इट मींस 2:1, 2 पार्ट्स इधर है 1 पार्ट इधर है, इट इज टॉकिंग अबाउट द रेशियो 2:1। अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्लोजर टू विच पॉइंट, तो आपने ये दोनों को लेके चलना है। एक बार आप 1:2 के साथ आप उसको डील करोगे, दूसरी बार आप उसको 2:1 के साथ लेके चलोगे। क्लियर? देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आपका कंसेप्ट है वो कैंसल आउट हो चुका है, so that we are not to do the questions based on that. हाँ जी, किसके? हाँ जी, हाँ जी, तो फिर हम नए तरीके से करवाएंगे उस टाइम पे। क्योंकि है ये कंसेप्ट आपका +1 में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज होता है, एट दैट टाइम इट विल बी टोल्ड अबाउट, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। So next we are starting with the questions. First question we are having, if 3, 2, 6, 3, x, y and 6, 5 are the vertices of a parallelogram. We are given a parallelogram over here and we are given the vertices. सबसे जो जरूरी काम होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें जो आप इनके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के लिखते हो उनका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप सीक्वेंस में जब भी लिख रहे हो जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, either it should be anti-clockwise or it should be clockwise. जो 4 आपको पॉइंट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे मुझे गिवन है 3, 2, 6, 3
एक्स वाई एंड 6 5। अब सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो जब आप इनको लिखोगे, ये मैंने अगर 3,2 लिखा है, 6,3 को मैं चाहे इधर लिख लूं चाहे इधर लिख लूं। अगर मैं इधर लिखूंगी तो इट मीन्स आई एम मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ लिख लिया, तो इट मीन्स आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से मैं यहाँ आई, तो मुझे अब ये वाला पॉइंट लिखना है। एक्स कॉमा वाई को अगर मैं यहाँ लिख दूंगी दैट विल बी रॉन्ग। क्लियर? आगे ये चीज का आपने ध्यान रखना है। सो एक्स कॉमा वाई आपका यहाँ पे आएगा एंड द पॉइंट अदर पॉइंट 6,5। अब मुझे चेक क्या करना है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई निकालने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट एक्स एज वेल एज वाई। अब ये एक्स कॉमा वाई कहाँ पे है, एक ये पॉइंट आपको गिवन है और पैरेललोग्राम मुझे गिवन है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन मुझे पता है कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि ये जो पॉइंट अगर मैं m लेके चलती हूँ, इफ दिस इज ए बी सी डी, तो m पॉइंट जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एज वेल एज ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दैट वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एक बार आपके पास आ जाएगा तो यू कैन सिंप्लीफाई। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वेट करोगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वेट करोगे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट। हाँ जी, हाँ जी, मिड पॉइंट की बात करें तो यू विल यूज दैट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वेट कर दोगे। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा आपका, एक्स प्लस 3/2, x1 प्लस x2/2 फॉर्मूला होता है, तो दिस इज x प्लस 3/2। और इधर से इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, दैट विल बी 6 प्लस 6/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वेट कर दोगे। Similar way में here you will be having 3 y coordinate we will be having 2 plus y/2, तो y coordinate को y के इक्वेट करोगे and this is equal to 3 plus 5/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get the y coordinate, y की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get the value of x coordinate। पूछा क्या है, x plus y, दोनों को ऐड करके you will give the answer। आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो 9 आएगा और जो y कोऑर्डिनेट आएगा आपका दैट विल बी 6। तो योर आंसर विल बी 9 प्लस 6 दैट इज 15। हाँ, मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question we are having find the ratio in which P divides the line segment joining the points A 2,3 and B 6,-3। अब हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन हैं A और B। A is 2, 3 and B is 6 and -3. We are to find the coordinates of a point P. We are to find the ratio in which this point P divides, और P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 4,m। P डिवाइड कर रहा है A B को किस रेशियो में, दैट रेशियो वी आर टू फाइंड। ऑल्सो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड द रेशियो आ गया क्वेश्चन में, तो इट मीन्स रेशियो हमें खुद से अज्यूम करनी है। सो हम ले लेंगे लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। अब P के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, एक हमें गिवन है, एक हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला K × 6 1 × 2 अपॉन K + 1। ये x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। y कोऑर्डिनेट के लिए K × -3 + 1 × 3 दैट विल बी -3 K + 3 अपॉन K + 1। और इधर से ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, m, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, जब भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से इक्वल होते हैं, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं एंड y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं।
So x coordinate we will equate to x coordinate of this, and y coordinate will be equated. So 4 is equal to 6k plus 2 upon k plus 1. On simplifying this, you will get the value of k. Calculations you will do yourself. The value of k will be 1. इसी तरीके से आप y coordinates को equate कर दोगे. जब आप y coordinates को equate करोगे तो what you will get? m is equal to -3. k को किससे replace कर देंगे हम? 1 से. So -3 into 1 plus 3 upon 1 plus 1. So this will be m is equal to -3 into 1 is -3. -3 plus 3 is 0. 0 upon anything is 0. So m की value हमारे पास क्या आ गई? 0. So what is your answer? That point P is dividing this in the ratio. K की value आपके पास 1 आई है. तो point P is dividing AB in the ratio 1. Ratio 1, this you will write down as your answer. And m is equal to 0. ठीक है? नहीं लिखना, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन. बिल्कुल जो भी आप एज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये आप लिखोगे. लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1. मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कवर करने हैं. ठीक है? आपको जब तक एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कि के रेशियो 1 कहाँ से आया, इफ यू विल नॉट मेंशन. नंबर हमेशा लिखे हुए के मिलने हैं, जो दिमाग में है उसके नंबर नहीं मिलने हमें. ठीक है? तो जो आप मतलब लिख रहे हो उसी से एग्जामिनर को क्लियर होना है. हमेशा मैं ये कहती हूँ, ये मान के चलो जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता, उसने जो समझना है आपके लिखे हुए से समझना है. तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, find the coordinates of the perpendicular bisector of the line segment joining A and B. अब हमें ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, हमें उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी वी आर गिवन एज 1,5 एंड 4,6. मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ फिगर ऑफ दिस. So if AB is represented by this line, we are to find the coordinates of the perpendicular bisector. And condition क्या given है? Perpendicular bisector cuts the y-axis. तो मान लो ये अगर इसको यहाँ पे P point पे कट कर रहा है, it cuts the y-axis. Y-axis को कट कर रहा है तो कौन सा coordinate 0 होगा, x या y? Which coordinate will be 0? X coordinate will be 0. So let the coordinates of point P be 0, y. X coordinate हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया. अब क्योंकि उसने हमें मेंशन किया है यहाँ दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर से हमें पता लग रहा है कि जो दिस डिस्टेंस पी ए है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस पी बी. Okay, we have assumed the coordinates of P. Now what we are to do? We are to equate PA is equal to PB. PA और PB को आप equal put कर दोगे and then you can simplify. जब भी इस तरह के आप डिस्टेंसेस इक्वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंसेस हम हमेशा रूट में लेके चलते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप्स को इजी बनाने के लिए यू आर टू स्क्वायर बोथ द साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे, ये आपके रूट्स जो हैं दोनों साइड से हट जाएंगे, देन योर कैलकुलेशंस विल बी इजी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए निकालोगे आप और पी बी निकालोगे, वाई दोनों साइड पे आएगा, जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड आपका जो भी आएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी. वाई की वैल्यू आपकी 13 आएगी. सो योर रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी, आंसर आप क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि पी के निकालने हैं तो दैट विल बी 0,13. वाई आपका आंसर 13 आएगा आफ्टर सॉल्विंग. Next we are having the x coordinate of a point P is twice its y coordinate. हमें एक पॉइंट P गिवन है, उसका हमें क्या गिवन है कि जो x कोऑर्डिनेट है that is twice of y coordinate. It means जो मैं लेके चलूंगी y कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी that will be double of that. So let the y coordinate be so x coordinate is twice of this, so that will be 2a. तो पॉइंट आ जाएगा आपका P 2a, A.
the x coordinate of a point P is twice its y coordinate, तो P के coordinates आ गए हमारे पास 2a, a. Now if P is equidistant, आगे वही question है आपका, P is equidistant from Q and R. ये point P है, that is equidistant from 2 points Q and R. Q के coordinates हमें given है 2, -5 and Q coordinates of R we are given as -3, 6. So we are to find the value of A. Coordinates of P हमने निकालने हैं, means value of A निकालोगे, इसमें put करोगे, you will get your answer. Equidistant है means PQ is equal to PR आप put करेंगे, ठीक है, you will put PQ is equal to PR. Simplify करोगे, you will get your answer. A की value इसमें जो answer आएगा आपका, you will get the value of A as 8. So coordinates will be 16 and 8. Then next we are having, if the point A 4,3 and B x, 5. अब ये सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सर्कल की आपको प्रॉपर्टीज पता है कि जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सर्कल के ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें, सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा दैट इज इक्वल टू द रेडियस. तो कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला लगेगा, बट शेप आपको यहाँ पे दूसरी दे दी गई है. सो वी आर गिवन इफ द पॉइंट्स ए एंड बी, ए हमें गिवन है 4, 3 एंड पॉइंट बी हमें गिवन है x, 5. इफ दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, तो इन दोनों पॉइंट्स से पास करता हुआ आपने एक सर्कल बना देना है. एंड द सेंटर ऑफ दिस इज 2, 3. सेंटर हमें गिवन है 2, 3. सो व्हाट वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ से मुझे क्या पता है, मुझे सर्कल की जो है कंडीशन पता है यहाँ पे कि जो सर्कल का सेंटर है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो इट मींस अब मुझे क्या लेना है, OA इज इक्वल टू OB. क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, OA इज इक्वल टू OB. हिमांशु जस्ट अ मोमेंट बेटा. यस एक्चुअली मैम, हाँ जी, मेरा डाउट है पर कोई और क्वेश्चन में है मेरा. आफ्टर दिस वी कैन डिस्कस दैट बेटा. लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल आस्क. सो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, रेडियस क्योंकि इक्वल होता है तो OA इज इक्वल टू OB. डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, and that is equal to 2 - x whole square plus 3 - 5 whole square under the root. Again क्योंकि जब इस तरह से हम इक्वेट करते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, मीन्स रूट हमने पहले ही हटा दिया. देन आपकी जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होके लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ